Now whenever you solve a linear problem or linear programming problem, then there are two parts of the question. The first part is the optimization function, that is maximization or minimization. You are supposed to maximize, sometimes you are supposed to minimize. In this question, you are supposed to maximize. You are supposed to maximize the value of z. You are supposed to maximize the value of z. Z is equal to 3x plus 5. Now, subject to esteeming subject to the conditions. Now, these are the conditions, the constraints 1, 2, 3, and these are the positive constraints. मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या है ब्रीफ में तो नहीं दिया है, खाली इक्वेशन दिया है, तो ये मान के चलेंगे कि ऐसा क्वेश्चन है जहां पर x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा हो सकता है. मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं ना कि मेरे को ये काम करने में -10 घंटे लगते हैं, तो या तो 0 या तो 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा, 4, 0 से ज्यादा. समझ में आ रहा है कि नहीं? टाइम है, स्पीड है, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ये माइनस नहीं हो सकता, डिस्टेंस है, लेंथ है, ये माइनस नहीं हो सकता है ना. सो दीज आर द टू कंडीशंस, पॉजिटिव कंडीशंस, and 1, 2, 3 conditions. Now the steps to solve this type of question is, first you are supposed to prepare boxes. How many conditions are there? 3. So how many boxes to prepare? 3. 1, 2 and 3. 3 boxes to prepare. In these boxes you will write x, y, x, y, x, y, 0, 0, 0, 0, 0, 0. अरे बराबर. फर्स्ट x plus 4y less than equal to 24. Second, 3x plus y less than equal to 21. Third, x plus y less than equal to 9. So there are 3 tables, and the 3 tables are having the 3 conditions. Okay, see how simple it is, how easy it is. If x is 0, what is the value of y? कितना है y? 6, क्योंकि 4 ऊंचू तो उधर नीचू. 24 divided by 4 is 4 6 are 24. 6. This is point A. If y is 0, so x is what? 24. 24. This is point B. Similarly, if x is 0, y is what? 21. If y is 0, x is what? 7, because 3 ऊंचू तो उधर नीचू. This is C, this is D. Similarly, this is E, this is F. If x is 0, y is 0, 9. So we have got all the boxes filled up with numbers. That means we have got all the numbers. Now after this, preparing these 3 boxes, you have to plot this A, B, C, D, E, F. सारे points को plot करना पड़ेगा. How to plot them? You have to prepare a graph. Now graph preparation has to be done on your graph page. But if graph page is not there, you can do it on your book also. But prefer using graph page, because if you use graph page, then you will get the exact point. In exam also, they will give you a graph page. You will get an exact point. Okay? Now, सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24. ना इधर 24, 6, 7, 21, 9. तो 24 सबसे बड़ा है. तो 24 तक जाना है. तो कैसे जाएंगे? दो करके जाएंगे. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. This is 0. The first point is A, x पे 0, y पे 6.
A. Second point is B, x पे 24, y पे 0. So I have got this first point. So I can get this first line. Hope you understand. This is equation number 1. Second is x पे 0, y पे 21. This is C. B is 7. This is D. So I have got this line also, CD. This is 2. Similarly, the last one, x पे 0, y पे 9. E. And x पे 9, y पे 0. F. So this is your third line. 3. Easy. First step is preparing the tables. How many conditions are there? You have to prepare those many tables. After that, preparing the tables, then preparing the lines of the tables. Then joining your A, B, B, C, C, D, E, F. Okay. Next step is finding the feasible region. Which region? Feasible. Feasible region is the region which is common. Which is common. That means the region which satisfies all the conditions of the equations. It is not related to maximization, minimization. It is related to the condition. ये condition क्या है? Less than, less than, less than, less than है, less than, समझता है क्या? Less than, उधर देख लेगा, nose उधर है, less than, less than, less than. Mouth रहेगा तो more than, more than, more than. वो less than है. Less than means नीचू. Less than means नीचू. More than means ऊंचू. So less than. Less than means सबके नीचे. मतलब इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे. सबके नीचे एक कॉमन एरिया है. ये. एक कॉमन एरिया है ये. समझ में आ रहा है क्या? ए ओ डी जी एच. ए ओ डी एच जी. फिजिबल रीजन इज ए ओ डी एच जी. समझा क्या? फिजिबल रीजन कैसा मिला? तुम लोग बोलेंगे सर ये क्यों, ये साइड क्यों नहीं आया? नहीं आएगा ना ये साइड क्योंकि ये नेगेटिव साइड है ना. नेगेटिव साइड नहीं बोला है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है. y ग्रेटर देन, यही पॉजिटिव क्वाड्रेंट नहीं बोला है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव साइड, y के पॉजिटिव साइड. तो ये एक ही साइड है जो पॉजिटिव साइड, एक ही क्वाड्रेंट है. तो इसमें ही आंसर आएगा. समझ में आ रहा है क्या? अभी a o d g कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिजिबल रीजन. कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? A 06, A B, सॉरी B कहां से है? O 00, O is 00, D 70, D is what? 70. D is 70. Then H 63. तुम लोग बोलेंगे सर आपको कैसा नंबर 63? अब तुम लोग अगर बराबर से स्केल लेके बनाओगे ना तो परफेक्ट आएगा, और ग्राफ पेज पे बनाओगे तो परफेक्ट ही आएगा. तुम सर नहीं, अगर नहीं परफेक्ट आया तो क्या करें? एग्जाम में क्या करें कि अगर मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो दो लाइन इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे कर रही है, तो स्टैंडर्ड 10 याद करने का मैंने सिखाया था. जब दो लाइन रहती है
और दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढने का रहता है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। नहीं रे, ये कौन सा है सेकंड और ये कौन सा है थर्ड? सेकंड और थर्ड मतलब 3x plus y is equal to 21 और x plus y is equal to 9, बराबर ना? दोनों का साइन सेम है तो क्या करने का? सब्सट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये गया 2x is equal to 21 minus 9 12, x is equal to 12 upon 2 6, x 6 और putting x equal to 6 in equation number 2 तो x plus 6 plus y is equal to 9, देखो y is equal to 9 minus 6 3, ये देखो ना 6 3। लोग ऐसा करने बोला। हाँ, कब जब पॉइंट नहीं मालूम पड़ा तब। पॉइंट मालूम पड़ गया तो ऐसा करने का जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट मालूम पड़ गया तो वैसा ढूंढने का जरूरत नहीं है। मतलब खाली पॉइंट ढूंढने के लिए तो हम लोग ये करते हैं, उसका कुछ अलग से मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी वो टीचर ने तुमको बोला है, मतलब अभी क्यों बोला है, गधा मजूरी क्यों कराती है, क्या मालूम। अभी ग्राफ पे यूज करेगा तो सीधा सीधा 6 3 पे आ ही जाएगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं, बराबर ना। अगर नहीं आता है तो यू यूज दिस मेथड एंड फाइंड आउट द वैल्यूज, नहीं तो इट इज sheer वेस्ट ऑफ टाइम, एकदम प्योर वेस्ट ऑफ टाइम ऐसा समझिए। नेक्स्ट इज दिस पॉइंट, this point will be 4, 5 क्या रहेगा? 4 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 आएगा, 4, 5 तुम लोग को आ जाएगा, मेरा भी आसपास ही है। आगे चलते हैं। सो ऑल द कोऑर्डिनेट्स यू गॉट, सारे कोऑर्डिनेट मिल गए। अब तुमको क्या करना है? मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है? मैक्सिमम। सो मैक्सिमाइज at A, at O, at B, at H, at G, सब पॉइंट लिख दिया। अब क्वेश्चन लिख दो, क्योंकि मेन काम तो ये है ना, 3 3 3 3 3 x x x x x प्लस 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 5 5 5 5 5 y y y y y equal to. So first is 0 6, answer is 30. Next is 0 0, answer is 0. Next is 7 0, answer is 21. Next is 6 3, answer is 18 15 33, क्या मालूम मैं सही लिखूं। नेक्स्ट इज 4 5 12 25 37, क्या मालूम मैं ऐसे ही। तो हो गया, वैल्यू डाल दिया। अब फाइनल आंसर क्या करना था? मैक्सिमाइज करना था ना, तो इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है? सो मैक्सिमम वैल्यू इज 37 एट पॉइंट G 4, 5 दिस इज द आंसर। सिर्फ ये 4, 5 निकालने के लिए टेबल, ग्राफ, पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, एंड देन मैक्सिमम करना है तो सबसे ज्यादा वाला लो, मिनिमम करना है तो सबसे कम वाला लो। अरे समझा? स्टार्ट।